that is nothing but classification of isomers in a coordination compound, right? To understand the concept of isomer, classification of isomer in the given coordination compound, one should know meaning of isomer, and you all are familiar the word isomer. Isomer होता क्या है? Compound having same chemical formula, or we can say same molecular formula, but they shows different structural formula. एक ही कंपाउंड के आप अलग अलग स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज व्हाट आइसोमर. नाउ हियर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट, द आइसोमर्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू टाइप. ये जो आइसोमर है वो दो इसमें क्लासिफाई हो जाता है. जस्ट अ मिनट. फर्स्ट इज stereoisomer and second is constitutional, or it is called as a structural isomer. I will explain in detail what is the stereoisomer. उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं. पहले ये देखते हैं हम लोग क्या होता है. आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. फर्स्ट इज stereoisomer and second is constitutional, or it is called structural isomer. Now the stereoisomer, they are further classified into two type, which is geometric, or that is called distereoisomer, and next will be your optical isomers or enantiomers. So stereoisomers are further classified into two type, geometric or distereoisomer, while second classification of that stereoisomer is optical isomer, or it is also called as a enantiomer. The optical isomer, optical activity concept, enantiomer, that we already studied in halogen derivative, उसमें पढ़ा हुआ है, उसी से related थोड़ा concept ये है. Even this constitutional or the structural isomer, they are further classified into four types, that is linkage isomer, coordination isomer, ionization isomer and solvent isomer. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन एक डिटेल में चलते हैं. जैसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट विल स्टडी दी स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, राइट. नाउ स्टीरियो आइसोमर्स, एज वी नो दैट, they are classified into two type, which is geometric isomers or distereoisomer, right. So there are two types of the stereoisomers or geometric isomers. One is cis isomer and second is trans isomer. We'll give an example. एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, बट पहले तो ये देखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म. Isomerism in coordination compound, right. So chemical, generally what happen in the case of that isomerism in coordination compound, so the compound which having similar or same molecular formula, or we can say the same chemical formula, but they have a different chemical properties, or we can say they have their chemical reactivity and physical properties such as color, solubility and melting point, that are different. Same molecular formula but different chemical properties or chemical reactivities and physical properties such as color, solubility and melting points, that is called as isomerism in coordination compound. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट will get the chemical formula for the given coordination compound. There are two or more than two also, so there are two different chemical formula. For that two different chemical formula we can draw the two different structure, right. So depending upon the arrangement of that structure, that has been classified into different type. मतलब दो टाइप में क्लासीफाई किया था, जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, राइट. अभी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है. So in the case of stereoisomer, the constituent particles, they are arranged, the arrangement of the constituent particle, or we can say the arrangement of atoms or groups of atom in the given or coordination compound, that is different. The spatial arrangement of atoms or groups of atom in the compound is different for the same chemical formula, that is called as a stereoisomer. So that these stereoisomers
जो आपका क्लासीफाई हो गया है दो पार्ट में, जिसमें पहला जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमर। अभी देखो ज्योमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और डाइस्टीरियो आइसोमर, सीस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर। नाउ आई गिवन एन एग्जांपल, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। तो ये जो एग्जांपल है प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, राइट, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, इसमें दो एग्जांपल लिए हुए, प्लैटिनम NH3 then H2O Cl2. So what are the type of that first example, platinum NH3 twice Cl2 is Ma2B2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लैटिनम बनेगा मेटल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, NH3 जो आपका लिगैंड है वो A2 कंसिडर किया गया है, मतलब A आपका NH3 है बट यहाँ पे दो NH3 है इसके लिए A2 कंसिडर किया गया है, और Cl2 आपके पास दूसरा लिगैंड है क्लोरीन, दो है इसके लिए B2 किया हुआ है। उसी तरह से अगर आप ये Ma2BC टाइप के पास जाते हो तो M स्टैंड फॉर मेटल विच इज प्लैटिनम हियर, देन देयर आर टू लिगैंड्स, Cl2 यहाँ पे दो बनेगा, A2 लिखा हुआ है मतलब क्लोरीन को बिलोंग कर रहा है, वो दो है, अमोनिया एक है B और वाटर एक है C। तो सीस और ट्रांस में होता क्या है, पहले तो हम लोग सुनते हैं व्हाट इज अ सीस आइसोमर, विल स्टडी व्हाट इज अ सीस आइसोमर। So in the case of cis, you all are familiar the word cis and trans, right? तो cis होता क्या है, identical ligands occupy the adjacent position। Here आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ा है, राइट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने ब्यूट 2 इन का जो स्ट्रक्चर था उसका आपने सिस ब्यूट 2 इन एंड ट्रांस ब्यूट 2 इन आपने लिखा था। In that case what you studied that the identical group, for example but 2 in के केस में the identical atoms or groups of atom they lies on the same side of the double bonded carbon atom, बराबर ना। तो ये सीस हो गया। ट्रांस के केस में क्या होता है, the identical atoms or groups of atom they lies across or we can say opposite or we can say diagonally to the double bonded carbon atom। ये पर्टिकुलर केस किसके लिए था, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए था। सिमिलर टाइप का ये एग्जांपल है, सिमिलर टाइप का यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके आइडेंटिकल लिगैंड्स रहेंगे, राइट, जैसे पहले के एग्जांपल में यहाँ पे अगर मैं ये पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो पहला एग्जांपल है देयर आर टू लिगैंड्स, वन इज NH3 एंड सेकंड इज Cl2, राइट। तो आइडेंटिकल लिगैंड कौन सा है, NH3 आइडेंटिकल हो गया दो, और Cl क्लोरीन भी आइडेंटिकल हो गया दो। सो दिस आइडेंटिकल लिगैंड जो होते हैं दे ऑक्यूपाइड द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब प्लैटिनम के लेफ्ट हैंड साइड में NH3 रहेगा तो प्लैटिनम के राइट हैंड साइड में क्लोरीन रहेगा, लाइक दैट, ठीक है। while in the case of trans the identical ligands occupy the opposite position, आइडेंटिकल लिगैंड जो रहते हैं वो अपोजिट पोजीशन पे रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, ये वाला, ठीक है। सो व्हाट इज सीस आइसोमर, सो हियर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, जो मेटल है प्लैटिनम NH3 देयर आर टू लिगैंड, देखो ये टू लिगैंड जो आइडेंटिकल ग्रुप है दे आर ऑन एडजेसेंट साइड ऑफ दैट प्लैटिनम, मतलब राइट साइड में ही दोनों रखे हुए हैं। वाइल क्लोरीन जो आपके दो आइडेंटिकल ग्रुप है दे आर प्लेस एट द लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली in the case of trans the identical group that ammonia NH3 they are opposite side, वो क्या रखा हुआ है, they are in a opposite position, right, और we can say they are across the platinum, opposite position हो गया। और क्लोरीन को भी देखोगे तो ये क्लोरीन, देखो क्लोरीन भी आपका प्लैटिनम के अपोजिट में, क्रॉस में है वो, ठीक है। तो इससे कहा जाता है सीस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर, राइट। तो जनरली ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होता है, तो दीज आर दी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आइसोमर होता है, एंड दीज आर पॉसिबल इन दी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। व्हाई हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो सारे के सारे आइडेंटिकल ग्रुप हो गए ना, मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्लैटिनम NH3 4 लिया, सिर्फ Cl2 को हटा के हमने सिर्फ NH3 4 ले लिया, तो यहाँ पे चार अमोनिया हो जाएंगे, तो चार अमोनिया को आप अपोजिट डायरेक्शन में कैसे रखोगे, वो तो सिमिलर ही दिखेगा ना। सो इन दैट केस होमोलेप्टिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक के केस में देर आर डिफरेंट ligands attached to the central metal atom। आ गया ध्यान में। so these are what this is called as a cis and trans isomer।
तो दे विल गिव एन एग्जांपल एंड यू हैव टू ड्रॉ द सीस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर। जैसे अभी ये दिया हुआ है प्लैटिनम NH3 ट्वाइस, तो कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे तो उसका आपको सीस और ट्रांस ज्योमेट्री निकालना है एक, या फिर एग्जांपल दिया रहेगा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एन आइसोमेरिज्म, मतलब वो सीस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है या ज्योमेट्रिक आइसोमर है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो एनी डाउट इन दिस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म? बहुत सिंपल है सीस एंड ट्रांस। कुछ डाउट है इसमें तो मैं पूछ लीजिए, अदरवाइज विल मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट प्लीज। नो आंसर फ्रॉम योर साइड्स? या वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, तो इजी है। तो ये देखो सीस का भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल लिए हुए हैं, राइट। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो वो सीस और ट्रांस हो जाता है। फिर बाद में हम लोग जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। नाउ ऑप्टिकल वर्ड, वी ऑलरेडी स्टडीड ऑप्टिकल वर्ड इन हैलोजन डेरिवेटिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है, राइट। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल? तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? द मॉलिक्यूल विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, राइट ना, है ना। एंड इनैंशोमर भी हमने पढ़ा था, बराबर। तो होता क्या है इनैंशोमर्स? इनैंशोमर दे जनरली हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, right? Non-superimposable, there are two types of images, one is superimposable mirror image and second is non-superimposable mirror image. Now, you know what is non-superimposable mirror image? Please, suppose for example we have taken a book, अगर केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक लिया है और उसको हमने ऑप्टिक्स मतलब मिरर के सामने रखा हुआ है, राइट, बराबर। या फिर अभी यही वर्ड ले लीजिए ऑप्टिकल, ये जो ऑप्टिकल है ना, ऑप्टिकल, ये वर्ड को हमने मिरर के सामने रख दिया, राइट। सो ऑप्टिकल में OPTICAL ये जो लेटर्स है, इसमें से कुछ लेटर क्या देंगे? दे विल गिव एग्जैक्ट इमेज, जैसा मिरर जैसा है यहाँ पे वैसा ही मिरर में दिखाएगा, बट कुछ लेटर ऐसा है कि वो रिवर्स इमेज दिखाएगा। रिवर्स क्या आप उसको बोल सकते हो? नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो मुझे पता है ये ओ आपने अगर आईने के सामने रखा, मिरर के सामने, तो वो कैसा दिखेगा? उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा आईने में? ओ का सेम सेम होगा, यस, सुपर इम्पोजिबल, दैट सेम मतलब सुपर इम्पोजिबल। अगर आपने पी रखा तो पी कैसे दिखेगा? यस पी, हाँ, मतलब पी वहां पे रखोगे तो उल्टा दिखेगा ऐसा, तो उसका मतलब वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे रहा है। आ गया ध्यान में? सो देर आर सर्टन मॉलिक्यूल, अभी ये तो हमने लेटर के बारे में बताया था, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है। तो देर आर सर्टन मॉलिक्यूल विच गिव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एज वेल एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, राइट। नाउ हियर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप कायरल सेंटर वगैरह फाइंड आउट करते हो, बट यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे ये प्रैक्टिकल पार्ट है, और जो पर्टिकुलर कंपाउंड का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रहा है तो वो बनेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनैंशोमर। तो वो कैसे होता है? तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है, इट कंप्लीटली रिलेटेड टू दी ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमिना, राइट। तो इसमें जो दो तरीके के क्लासिफिकेशन मतलब एग्जांपल दिए हुए हैं, दैट इज नथिंग बट वन इज ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है दे आर शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स, वाइल सेकेंड जो दिया हुआ है वो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्टिंग एज बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो विल स्टडी द एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल का स्ट्रक्चर दिखा एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा। बिफोर दैट you should know what is the optical activity or optical isomers. What is optical activity? Optical activity is a phenomena, है ना, a phenomena of rotating the plane of plane polarized light by an optical active substance, or we can say molecule, is called as the optical activity, right now. And the substance which can rotate the plane polarized light towards right hand side or left hand side, that is called as the optical active substances, right. इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और लेओ रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो को आप डी से डिनोट करते हो और लेओ को आप एल से डिनोट करते हो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करेगा? दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड,
right? While in the case of Leo rotatory they can rotate the plane polarized light towards left hand side. ओके तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी आइसोमर कहा जाता है और लेओ रोटेटरी को एल आइसोमर कहा जाता है. अभी इसमें ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर, बिकॉज वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑप्टिकल आइसोमर और इनैंशोमर. सो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी. मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेंगे बट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वी कैन से केमिकल फॉर्मूला इज सेम, बट दे हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी. उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है. दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल आइसोमर, राइट? ओके तो यहां पे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, तो आपको इजीली पता चलेगा व्हाट इज दैट ऑप्टिकल एक्टिविटी. बराबर. सो ये देखिए, सो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल, ये CO ईएन थ्राइस. ईएन थ्राइस मतलब इथिलीन डायमाइन, 3 है वो आपके पास लिगैंड 3+. सो ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो देख लीजिए, राइट? तो देख देयर इज अ मिरर, ये मिरर है. दिस इज कंप्लीटली स्टीरियो केमिस्ट्री एंड इट इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पार्ट. प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है ये. तो अगर आपने देखा तो CO जो है कोबाल्ट, वो इथिलीन डायमाइन को इस तरह से अटैच है, मतलब ये 1 2 3. अगर इसका आपने इसको रिवर्स, मतलब मैंने इसको ऐसे, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और ये मैं यहाँ पे रहेगा राइट हैंड साइड. अभी सेम कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से. यहाँ पे देखो, तो अगर आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ईएन है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में चला गया, और ये जो राइट हैंड साइड वाला ईएन दो ग्रुप है ना, वो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. तो ये मिरर में दिख रहा है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर रिवर्स स्ट्रक्चर आ गया. मतलब आप ऐसे हाथ को उठा के ऐसे लेफ्ट में घुमाते हो ना, वैसे टाइप पे ये कंपाउंड को यहाँ से ऐसे उल्टा कर दिया है. तो दिस इज ऑल मिरर इमेजेस. सो इट हैविंग द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट? तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिया है बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिकल एक्टिव कंसेप्ट. सिंपल. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल आइसोमर और इनैंशोमर. सो ऑप्टिकल आइसोमर कौन प्रोड्यूस करेगा? दो सब्सटेंसेस विच कैन यूज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिखाएगा, that particular complexes or that particular coordination compound will show the optical isomer. Easy. ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यहां पे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए. octahedral complexes existing as both geometric and optical isomer. So here they have given an example, platinum Cl2 En2, मतलब यहाँ पे क्लोरीन 2 है और इथिलीन डायमाइन 2 है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इन दिस टाइप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ओनली द सीस आइसोमर एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशोमर. सीस वाला जो है वो पेयर ऑफ इनैंशोमर दिखाएगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिखाएगा सीस वाला, बट ट्रांस वाला नहीं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से देखो, यहाँ पे फिर से अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया है, राइट? या फिर आप देख लोगे तो यहाँ पे देखो ये ईएन ये एक ग्रुप है और क्लोरीन यहाँ पे वन साइड में. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड सीस? ये सीस क्यों है? बिकॉज द आइडेंटिकल ग्रुप दे आर एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. आइडेंटिकल ग्रुप को एक ही जगह पे रखा हुआ है, एडजेसेंट, ठीक है? तो ये बनेगा आपका सीस. तो इसी का अगर आपने मिरर इमेज निकाला है, तो ये मिरर इमेज देखो, यहाँ पे ईएन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ये इस तरह से यहाँ पे आ गया, और Cl. तो अगर आप चेक करते हो कि इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं लाइक दैट, ये बनेगा आपका लेफ्ट साइड और ये बनेगा राइट साइड. उसी तरह से सेम आपने यहाँ पे भी अगर चेक किया है तो ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है. तो देखो ईएन ये लेफ्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, Cl ईएन Cl, और ये वाला जो पार्ट राइट वाला जो है वो लेफ्ट वाले में दिखेगा. सो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शोन बाय दी सीस आइसोमर, राइट? वाइल इसका ट्रांस आइसोमर, इसका जो ये ट्रांस आइसोमर जो है, ये वाला ट्रांस आइसोमर है, इसका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसके केस में सेम इमेज मिलेगा आपको. मिरर के केस में, मिरर में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, एज इट इज. इसको जैसे अगर आपने शो भी किया तो जो स्ट्रक्चर ट्रांस आइसोमर का ये है, वही स्ट्रक्चर आपको आईने में मिरर में मिलेगा, राइट?
So this is what an optical isomer. So in short, optical isomer, it is completely related to mirror images. And what is the isomer? अभी यहाँ पे isomer concept कैसे different define करोगे आप, है ना? So यहाँ पे isomer कैसे define करोगे? जैसे ये वाला जो example है इसमें, that is an isomer, optical isomer, where these two means these two images, या we can say the two structure. ये वाला एक पहला structure consider कर लेते हैं और ये दूसरा structure. There are two structures. Both structure are different. मतलब दोनों का मिरर इमेज जो है, मिरर इमेज स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, but their chemical formula is same. So we know that isomer, what is isomer? Same molecular formula but different structural formula, and this different structural formula is obtained due to optical activity concept, or we can say due to the non superimposable mirror image. So therefore it comes under optical isomer. ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स. So these are the two classification. किसका classification था ये दोनों? That is the classification of stereoisomer. So stereoisomers are classified into two types: geometric isomer and optical isomer. Right? Geometric isomer, they are called as a distereoisomer, while optical isomer, they are also called as a enantiomer. Right? Stereoisomer क्या होता है? In simple अगर आप कहना चाहते हो तो stereoisomers have the same link among the constituent atom. However, the arrangement of atom in a space are different, or we can in simple word, the different spatial arrangement of atoms or groups of atom across the central metal atom. यहाँ पे central metal atom ही रहेगा, right? So this is what related to the first classification of an isomer. Now